Hello? Yes. Okay. It's really a privilege for me to come and be part of this service in this meeting. और मैं एक सौभाग्य मांगता हूं कि आज शाम के समय आपके बीच में आकर इस मीटिंग का एक भाग बनूं। I thank Pastor Suresh for having invited me. For the last few weeks and months, I've been talking to various congregations, and it's a pleasure for me and a privilege for me to join with you tonight in this worship service. मैं पास्टर सुरेश को धन्यवाद करता हूं कि इस शाम के समय आपके बीच में सेवकाई करने के लिए मुझे आमंत्रण किया है। पिछले 2-3 महीने से मैं अनेक प्रोग्रामों में, मीटिंगों में परमेश्वर के वचन की सेवकाई करता जा रहा हूं। To serve him, the ministries that God has given to me, in which I am involved in the last 40 years, there's 2 ministries. One is called a tribal mission, the ministry among the tribal people, and the other is the intercollegiate prayer fellowship, the ministry among the college students. 40 साल से परमेश्वर ने मुझे बुलाया है और उनकी सेवकाई में 2 संस्था के साथ मैं सेवकाई कर रहा हूं। सबसे पहले ट्राइबल मिशन जो एक संस्था है और दूसरा इंटरकॉलेजिएट प्रेयर फेलोशिप ICPF जो आप जानते होंगे, उस 2 संस्थाओं के द्वारा मैं परमेश्वर की सेवकाई में लगा हूं। I was saved in the year 1966 when I was a medical. 1967 में मैं परमेश्वर को जाना और उद्धार पाया। And it has been a great privilege for me to serve him also for the last 40 years. और पिछले 40 साल से मैं उसके सेवकाई में लगा हूं। ये मेरे जिंदगी में सौभाग्य की बात है। Now let me come to the main theme, because we have probably a limited time because of translation also. So cutting short all other formal introductions, let me get into the message. बाकी सारे बातों को छोड़कर मैं जल्दी से अपने वचन की ओर मैं आना चाहता हूं। See, amid this vicious this coronavirus pandemic, we may have different reactions in our lives. हमारे जिंदगी में आजकल जो इस बीमारी और जो महामारी चल रही है, उसके बीच में हमारे जिंदगी में अनेक अलग तरीके के प्रतिक्रियाएं होंगे। Like most of the people, we may be worried about our lives, what may happen to us. Will we also succumb to this deadly virus? कुछ लोग इस प्रकार व्याकुल होंगे, चिंतित होंगे कि क्या हमारे जिंदगी में कल क्या होगा और क्या हम भी इस महामारी के अधीन में आके मर मिटेंगे। Sometimes we may be wondering how this tiny, small, specule virus can cause such a global pandemic problem, and can even intimidate great people, the educational field, in the administrative field. Everybody seems to be worried about this tiny small virus. कभी हमें ऐसा भी लगता होगा कि इतना छोटा वायरस संसार में इतना बड़ा तबाही किस प्रकार मचा सकता है। But as children of God, we may also know that from the knowledge of the scriptures, sometimes such national calamities occur because God was not pleased with how his people reacted. और हम परमेश्वर के वचन से इस बात को जान सकते हैं, इस प्रकार की एक महामारी जब आती है तो हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर के बातों को लोग जब माने नहीं या उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं किए, तो उस प्रकार की महामारी आते हुए हम देख सकते हैं। And we also know in such circumstances when the people humbled themselves and prayed, God heard their prayers and brought a halt to that calamity. और हम ये भी जानते हैं कि इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा के बीच में भी परमेश्वर से जब उसके प्रजा ने प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और उस आपतों से परमेश्वर ने उन्हें बचाया। So all over the world, children of God started coming to God, humbling themselves, praying, seeking his face, and trying to turn away from their evil ways.
so that God in heaven will hear their prayers, will heal the land after hearing their prayers. और हर जगह पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के जन अपने आप को नम्र करके प्रार्थना में उसके चेहरे को जब ताकते रहा, तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनकर उस देशों में, उस जगहों में एक बड़ी छुटकारा भेजा है। This is what the Bible teaches us in the book of 2 Chronicles 7:14, which is very familiar to us. If people call by name, humble themselves and pray, seek my face, and get away from their sinful ways, I, from heaven, will hear their prayers, forgive their sins, and heal their land. और इसी बात हम दूसरा इतिहास 7वीं अध्याय उसकी 14वीं वचन में देखते हैं कि जब मेरा नाम से पुकारा गया हुआ मेरे जन अपने पापों को कबूल करके अपने आप को नम्र करते हुए अगर प्रार्थना करेंगे, मैं उनके प्रार्थना को कबूल कर उनके देश में छुटकारा भेजूंगा। So definitely we have to examine our lives. We have to humble ourselves, pray, seek His face, and plead to God so that God will heal our land. That is our responsibility as children of God. और इसीलिए हम परमेश्वर के प्रजा होने के नाते हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को दीन करके प्रार्थना में और उसके खोजी बनकर हमारी जिंदगी में हम आगे बढ़ते रहें। But today I want to emphasize on another important role that the children of God has to play in this time of crisis. मगर आज मैं और एक जिम्मेदारी की ओर आपके ध्यान को लेने जाना चाहूंगा जो परमेश्वर के प्रजा के ऊपर है इन महामारी के और इस प्रकार की तकलीफ वाले दिनों के बीच में जो उन्हें बना है। Not only God has called us to humble ourselves, repent, and pray for the nation, but Jesus also said that we should be the salt of the earth, meaning the salt which prevents the decay in the earth. So we have a disease which is causing devastation, and our role as the salt of this earth also has to be emphasized. परमेश्वर ने केवल हमें नम्र होकर, दीन होकर और उसके मुख के खोजी बनकर और प्रार्थना करने में परमेश्वर ने जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा, हमारे ऊपर एक और जिम्मेदारी दिया है कि हम इस संसार में नमक रूपी बनकर उसके लिए काम करें, अर्थात इस महामारी के बीच में सड़ने की अवस्था को बदलने की एक नमक के गुण वाले। How do we play this role effectively? Not only crying, repenting, and asking God to heal our land, but also we play an active role, offensive role, so that we will be winning over the evil power in this world. और इस जिम्मेदारी को हम प्रभावी रूप से किस प्रकार हम निभा सकते हैं करके हम आज शाम के समय सीख। So we also know God has another important role for us to play, because while we live in this world as a citizens of this country, we are citizens of India, we are proud of that, we obey the constitution, we want to obey the rules that our rulers bring in so that we will have a peaceful living, all that we have to do as responsible citizens. But then we have a dual role. We are also called to be the citizens of the kingdom of God. हम इस देश के नागरिक होते हुए इस देश के सारे कानूनों को, नियमों को पालन करने का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम उन बातों को पालन करते हुए आगे बढ़ते समय हमारे ऊपर और एक बात सौंपी गई है कि हम उस अनंत काल की जिंदगी के वारिस हैं, उस राज्य के भी नागरिक हैं। We should never forget that we have a dual citizenship. We are the citizens of India and we are also citizens of the kingdom of God. और हम इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम दो देश के नागरिक हैं। इस देश के भारत देश में जब हम रहते हैं तो इस देश के नागरिक हैं, उसी के साथ हम परमेश्वर के उस राज्य के भी वारिस हैं, नागरिक हैं। And what does it mean and what role we have to play extra? If you remember, so the citizens of the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य के नागरिक होने के कारण
हमें और कौन कौन सी जिम्मेदारी या कौन कौन सी बातों को निभाना है। You know, when Jesus came and ministered for 3.5 years in this world, one of the main themes of his preaching was the subject of the kingdom of God. यीशु मसीह जब 3.5 साल इस संसार में अपने सेवकाई के साथ जुड़ा रहा, तब उनके प्रचार का एक मुख्य विषय था कि परमेश्वर का राज्य। His first message itself was the kingdom of God. In Matthew 4:17 we read, repent for the kingdom of God has come near. उनके पहले जो प्रचार था, उस प्रचार का विषय मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसकी 17वीं वचन में हम देखते हैं कि मन फिराओ कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। So the kingdom of God, we see repeatedly Jesus talks about the kingdom of God. और बारंबार हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस राज्य के बारे में प्रचार करता है। That was his main theme. और वे उनका प्रचार का मुख्य विषय था। He came to establish the kingdom of God in this world. और उस परमेश्वर के राज्य को इस संसार में स्थापना करने के लिए वे इस पृथ्वी पर आया। When Jesus sent his disciples to minister in the villages, surrounding villages, जब मसीह ने अपने चेलों को इर्द गिर्द के उस गांवों में सेवकाई के लिए भेजा, we read that in Matthew's Gospel 10th chapter and Luke's Gospel 9th chapter. He says he sent them to exorcise the devils, to heal the sick, and to preach the kingdom of God. और हम इस बात को मत्ती रचित सुसमाचार 10वीं अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 9वीं अध्याय में देखते हैं कि मसीह ने अपने चेलों को अशुद्ध आत्माओं को भगाने के लिए और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करने के लिए इस गांव में भेजा था। Today, we ministers of God, we preach the gospel. आज हम जो परमेश्वर के सेवक हैं, हम सुसमाचार को तो प्रचार करते हैं। The gospel is Jesus Christ, the Son of God, came in this world to die for our sins. He was buried, and he was resurrected, and he is living today. That is the gospel we preach. सुसमाचार जो हम प्रचार करते हैं वो ये है, यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, इस संसार में आया और यहाँ जिया, हमारे लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, और इस बात को हम आज प्रचार करते हैं। But during the time of Jesus, the disciples cannot preach this gospel, for Jesus was not dead, his blood was not shed, it was still flowing in his veins. He was not dead, he was not buried, he was not resurrected. So they did not preach the real gospel. अगर यीशु मसीह के समय इस संदेश को अपने चेले प्रचार नहीं कर सकता था, क्योंकि यीशु मसीह तब मरा नहीं था, उस शरीर में उसके खून बह रहा था। But today we preach that gospel, but that day Jesus sent them to preach. But what to preach? They cannot preach this gospel, but he sent them to preach the gospel, the good news of the kingdom of God. आज हम इस संदेश को बांटते हैं, मगर उस समय जब यीशु मसीह संसार में था, उसके चेले इस संदेश को तो बांट नहीं सकता था या प्रचार नहीं कर सकता था, तब उनको कौन से संदेश प्रचार करने के लिए या बांटने के लिए यीशु मसीह ने भेजा। So the gospel, परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करने के लिए भेजा। So the gospel of the kingdom of God is a prelude or a forerunner to the real gospel. और परमेश्वर के उस राज्य के बारे में जो संदेश है, वो संदेश इस जो मसीह के जो सुसमाचार के से पहले चलने वाली संदेश है। But when Jesus sent the ministers to preach the kingdom of God, he also added, exorcise the devil and heal the sick. और जब परमेश्वर ने, जब मसीह ने चेलों को प्रचार करने के लिए भेजा, तब उन्हें शुद्ध आत्माओं पर अधिकार और बीमारियों पर भी अधिकार देकर उनको दूर करने के लिए अधिकार देते हुए भेजता है। Yeah, the Luke's Gospel 9th chapter says he gave them authority to drive out all demons, cure diseases, and to proclaim the kingdom of God. और लूका रचित सुसमाचार 9वीं अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह ने उन्हें अधिकार दिया कि अशुद्ध आत्माओं को डांटे, निकाले और सब प्रकार की बीमारियों से और दुर्बलताओं से उनको दूर करे और परमेश्वर के राज्य के बारे में उन्हें बताए, सिखाए। That means the preaching of the kingdom
is manifested in driving out the demons and healing the sick people. अर्थात परमेश्वर के उस राज्य के बारे में जो संदेश है, वो संदेश इस अशुद्ध आत्माओं को दूर करने के लिए और बीमारियों को और दुर्बलताओं को दूर करने की उस सेवकाई में शामिल है. So Jesus very explicitly trying to teach his people, I have come to establish the kingdom on this earth in which you will all become citizens. And what is expected of you is to preach the kingdom to the people who do not know about that. And how do the people know that you are preaching a kingdom, a powerful kingdom, a godly kingdom? The only way is to drive out demons and heal the diseases. और इसलिए यीशु मसीह ने उस समय इस बात को साफ किया, मैं आपके बीच में आया हूं और आपको मैं परमेश्वर के उस राज्य के बारे में प्रचार करने के लिए सिखाता हूं. मगर जब आप इस परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को प्रचार करता है, तब लोग उस प्रकार की राज्य है करके उसके गंभीरता के बारे में कैसे समझेंगे? तो आप उनके बीच में जाकर उस अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार देकर उसे निकालते हैं और उनकी बीमारियों और उनके दुर्बलताओं से जब उन्हें देते हो, तब उनको समझ में आता है कि इस प्रकार की एक राज्य है. If you read the 11th chapter of the book of Luke's Gospel, 11th chapter, लूका रचित सुसमाचार 11वें अध्याय जब हम पढ़ेंगे, Jesus beautifully, that chapter beautifully illustrates how Jesus was impressing upon his people, his disciples, that the kingdom of God has come, and he is manifesting that by healing a sick person who was possessed by a demonic spirit and ordering the demons to go away. He says, if I cast out demons by the finger of God, understand the kingdom of God is in the midst of you. और इस अध्याय में लूका रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में हम देखते हैं कि मसीह बड़ी सुंदर रीति से परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाता है और अपने उस समय के सेवकाई के द्वारा जो भूत से पीड़ित एक व्यक्ति को चंगाई करते हुए बड़ी सुंदर रीति से परमेश्वर के उस राज्य को अपने सेवकाई के द्वारा प्रकट करते हुए हम देखते हैं. That chapter 11 of Luke's Gospel we have to read again and again, because there is a beautiful, what you should say, close teaching of Jesus. The first portion, Jesus teaches his disciples to pray, and in the prayer, the main part, one of the main themes is to pray that your kingdom come, your will be done in earth as it is in heaven. और इस 11वें अध्याय में शुरुआत में हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखाता है, और उस प्रार्थना में भी एक मुख्य बात ये है कि हे परमेश्वर, तेरी उस राज्य हमारे बीच में आए जिस प्रकार वो उधर आपके पास है करके उस बातों को सिखाते हुए, अपने राज्य सिखाते हुए हम देखते हैं. And after preaching about the kingdom of God, he says, he seems to say, now look here, the kingdom of God has already come, and how do you know that? How do you know the kingdom of God has come? And he demonstrated in a very, majestic way when he asked the demonic spirit in that boy who was mute and blind to go, and the devil obeyed, left the boy, and the boy was healed. और उसको उधर मसीह ने अपने परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाने के बाद उस राज्य के बारे में एक सुंदर बात हमारे उस संसार परमेश्वर के राज्य हमारे बीच में है करके उन्हें सिखाया, और परमेश्वर के राज्य हमारे बीच में किस प्रकार है करके उस बात को भी उधर स्थापित करते हुए उस भूत आत्मा से पीड़ित उस बच्चे को उधर मसीह ने चंगाई करते हुए बात को स्थापित किया, परमेश्वर के राज्य उनके बीच में है. You see, we read that verse, the 20th verse, it says, if I, by the finger of God, cast out the demon, the kingdom of God is near you. उसकी 20वीं अध्याय में वचन में हम देखते हैं कि परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है. The finger of God. परमेश्वर की उस सामर्थ्य. What does that finger of God mean?
परमेश्वर की सामर्थ अर्थात क्या कहलाता है? You know, it can be, Jesus says, my finger, with my finger I draw out. परमेश्वर कहता है कि मेरे उंगली से मैं बाहर निकालता हूँ। But if you read the same incident, which is recorded in Matthew's Gospel, 12th chapter, the same thing, a boy dumb and mute was brought and Jesus healed. And Jesus says, the kingdom of God is come. But he uses a different word. He says, if I, by the Spirit of Lord, cast out demons, then understand the kingdom of God is within you. और इसी घटना को हम मत्ती रचित सुसमाचार 12वीं अध्याय उसकी 22वीं वचन से हम देखते हैं कि वहां उस अंधे गूंगे को दुष्टात्मा के साथ पीड़ित उस व्यक्ति को जब मसीह के पास ले आया और मसीह ने उन्हें चंगा किया, तो मसीह उनसे कहता है कि मैं आत्मा की सामर्थ से दुष्टात्मा को निकालता हूं। You see, the same incident, the same healing, everything same, and Jesus says the same word, but only one difference. In Luke's gospel, he says, if by the finger of God I cast out demon. In Matthew's gospel, he says, if by the Spirit of God I cast out this demon. देखिए बात और जो बात हुई वो दोनों पुस्तकों में एक ही बात है, मगर फर्क इतना ही है कि लूका रचित सुसमाचार में मसीह उनसे कहता है कि मैं सामर्थ से मेरे उंगली से इस दुष्टात्मा को निकालता हूं, मगर मत्ती रचित सुसमाचार में कहते हैं मसीह उनसे कहता है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से मैं इस बात को मैं यहाँ उस चंगाई मैंने दिलाया है। I am driving out the evil spirits. मैं इस दुष्टात्मा को भगाता हूं। And the evil spirit, headed by Satan, the Lucifer, has been the controller of the world kingdoms till Jesus came. और ये जो शैतान जो है लूसीफर कहलाते हैं, वो इस संसार को संभालता है, अभी राज करता है। When Adam obeyed to Satan, he surrendered the authority and dominion that had been given to him to Satan. जब आदम ने शैतान का कहना माना, तब उसके ऊपर दिया गया हुआ उस अधिकार को उसने शैतान को सौंप दिया। Till then, it was God's plan that man should rule this planet. He said, go and rule and be a leader over everything that I. तब तक तो परमेश्वर ने अपने योजना में मनुष्य को इस संसार में चलाने के लिए और इस संसार को पर राज करने का अधिकार मनुष्य को दिया था। But we know Adam handed it over to Satan because he fell into the temptation and fell into sin. मगर हम जानते हैं कि आदम ने उस अधिकार को खोकर शैतान को दे दिया, क्योंकि उसने उस पाप में फंस गया। So from that time, he is the real ruler of this world. तब से शैतान इस संसार का राज करता है। He had his own kingdom, Satan's kingdom, the kingdom of Satan. और उसका एक राज्य है, शैतान का राज्य। Jesus himself said, Satan has a kingdom and a powerful kingdom. और यीशु ने खुद कहा कि शैतान का एक राज्य है और एक सामर्थी राज्य है। And even though there were many kings and emperors coming up and going, the real force behind all these kingdoms and the kings is Satan. और हम जानते हैं कि अनेक राज्य, अनेक सम्राट आते हैं चले जाते हैं, मगर हम जानते हैं कि उसके पीछे जो सही सामर्थ है वो शैतान का है। Even when Jesus came, he was the ruler. यीशु मसीह जब इस संसार में आया, तब भी शैतान राज करता था। Jesus himself pointed to Satan and said, here comes the prince of this world. और शैतान को यीशु मसीह दिखा के कहता है कि ये राज इस संसार का राजा है। Look at how Jesus addressed. He did not address him as the king of this world, but he addressed him as the prince of this world. और यीशु ने शैतान को किस प्रकार बुलाते हुए आप देखते हैं कि उन्होंने इस संसार का राजा करके शैतान को नहीं बुलाया, मगर उन्होंने कहा कि इस संसार का राजकुमार है। He is a prince, which means a king in wait. और राजकुमार है अर्थात राजा बनने का इंतजार में है। And Satan's only aim is to have the whole world under his rule, and that he will materialize only when the Antichrist comes.
और शैतान के मन में एक ही विचार है कि इस पृथ्वी को पूरा उसके अंदर दबाव में ले आना है, राजा बनना है। और वो बात उसी समय पूरा होगा जब झूठा मसीह का राज्य इस संसार में आएगा। So he is waiting for that. और उसके इंतजार में वो है। And that is his main aim. He wants to control the whole world. और उसका एक ही उद्देश्य है कि पूरे पृथ्वी पर उसका राज्य वो चलाना चाहता है। Till then he is only a prince, a king in waiting. और तब तक वो केवल एक राजकुमार है, अर्थात एक राजा बनने के इंतजार वो कर रहा है। And Satan knew one thing. और शैतान एक बात जानता है, because a man handed his authority to him, this authority to him. और क्योंकि एक मनुष्य ने अपना अधिकार शैतान को दे दिया, he knew only a man, not an angel, not even God, could legally redeem or get back the authority from him. और इसीलिए वो जानता है कि एक मनुष्य ही, ना परमेश्वर ना कोई फरिश्ता अधिकार रूप से उसके हाथ से यह अधिकार को छीन सकता है। He knew God is a righteous God. वो जानता है कि परमेश्वर एक धर्मी परमेश्वर है। He will not just drag or grab the authority from him. और वो ऐसे ही अधिकार को छीनेगा नहीं। And God, Satan can also always challenge God. You did not give me. Adam gave me. Why should I give it back to you? और शैतान परमेश्वर से हर बार ये चुनौती दे सकता है, ललकारा के कह सकता है कि ये अधिकार आपने मुझे दिया तो नहीं है, मैंने आदम से लिया है, आदम ने मुझे दिया है। And he knew no man can claim this because every man is being born as a sinner, and as long as he's a sinner, Satan is on the driver's seat. He is the leading, and no man can legally claim that. और शैतान ये बात भी जानता है कि जब तक उस पर यह अधिकार है, तब तक कोई मनुष्य उस अधिकार को छीन नहीं सकता है, क्योंकि जो मनुष्य पैदा होता है, जन्म लेता है, वो सब पापी होकर इस संसार में जन्म लेता है। But he never understood that God, in his omniscience, all-knowledgeable God, would, in the womb of a virgin, send his son, the word of God, to become flesh, and he will be born in this world as a man, sinless man, to challenge the authority of this Satan. मगर उसने कभी भी ये बात को नहीं सोचा कि परमेश्वर अपने इकलौता पुत्र को इस संसार में एक कन्या के अंदर गर्भ धारण करते हुए एक जन्म लेकर और वचन देहधारी होकर संसार में रहेगा और इस संसार के मनुष्य के लिए अपना जान देकर उस सलीब में जान देते हुए वो उस अधिकार को पाएगा। What is the mission of Jesus when he came to this world? यीशु मसीह संसार में आया तो उसका उद्देश्य क्या था? We know he came to redeem us from our sins. उन्होंने इस हमारे गलतियों से, हमारे पापों से हमें बचाने आया। Why should he redeem our sins? और वो हमें हमारे पापों से क्यों मोलना है? Then only we can be freed from the grip of Satan. तभी हम उस शैतान के बंधन से छुड़ाए जाएंगे। And if we are freed from the grip of Satan, we are entering from Satan's kingdom into God's kingdom. और अगर हम शैतान के उस बंधन से छुड़ाए जाएंगे, तब फिर हम शैतान के उस राज्य से बचकर परमेश्वर के राज्य की ओर प्रवेश हो रहे हैं। Jesus said, unless a man is born again, repent of his sins and accept Jesus, he cannot enter into the kingdom of God. यीशु मसीह ने कहा कि जब तक एक व्यक्ति अपने गलतियों को कबूल ना करते हुए मानता नहीं है, तब तक वो परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। The other side of it, if you are a born again person, you have already entered into the kingdom of God. मगर उसका दूसरा भाग ये है कि अगर आप मन फिराया हुआ जन है, तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो चुके हैं। So every born again believer is given the citizenship of the kingdom of God. और हर नए जन्म पाए हुए परमेश्वर के जन परमेश्वर के उस राज्य के नागरिक हो चुके हैं। What a joy to know that we are part of the kingdom of God while we live in this world itself. और ये कितना खुशी की बात है कि इस संसार में जब हम रहते हैं, हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक भी हैं। If we are a part of the kingdom of this world, अगर आप इस संसार के एक भाग हैं,
We know the kingdom of God, the kingdom of human beings, the emperors come and go. Many emperors have come, they all gone. और हम जानते हैं कि इस संसार के राज्य के ऊपर जो भी लोग राज्य करने आते हैं वे राज्य करके अपने समय के बाद वो चले जाते हैं। But this kingdom of God, heaven or kingdom of God is going to extend into eternity. अगर जो परमेश्वर का राज्य है वो अनंत काल की राज्य है। We are not going to lose that anytime. और वो हम कभी भी उसे खोएंगे नहीं। With Jesus, we are going to rule along with him this same earth. और मसीह के साथ हम उस परमेश्वर के राज्य में अनंत काल तक राज्य करते रहेंगे। So when Jesus fully establishes his kingdom at his second coming, और जब मसीह जब दोबारा लौटेगा तब इस राज्य का स्थापना करेगा, we will be given the authority to rule along with him. और हमें उस अधिकार मिलेगा कि उनके साथ उस राज्य पे राज्य करें। So when we realize that we are the citizens of the kingdom of God, और जब हम इस बात को पहचानेंगे हम उस परमेश्वर के राज्य के how नागरिक do we हैं। know we are really the citizens of the kingdom of God? How do we know, express it to the outside world? To be convinced the outside world, look here, we are the citizens of the kingdom और of God. हम इस बात को किस प्रकार पहचानेंगे कि हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। हम हमारे इस प्रकार कि उस परमेश्वर के राज्य के This was नागरिक। Luke's 11th chapter verses और 20. यहाँ लूका रचित सुसमाचार 11वें अध्याय हमें इस बातों को समझने के लिए सहायता If करती to है। the outside asking him to get away, and he's going away. और अगर आपको आप इस परमेश्वर के राज्य के नागरिक है करके समझना है और समझाना है, तो इस 11वें अध्याय में यीशु मसीह उस बात को कहता है कि देखिए कि मैं आपके बीच में आकर उस दुष्टात्मा को मेरी उंगली से निकाल कर इस बात को स्थापित करता हूं कि परमेश्वर का राज्य यहाँ है। When one king is being defeated and thrown away and sent out, then the person who defeats him becomes the next king. जब एक राजा आकर दूसरे राजा को युद्ध करके उसे हराता है, तब वो हरा हुआ राजा हट जाता है और ये राजा वहां राजा बन जाता है। Jesus says the only way that we can know we are winners, we are the kingdom of God, wherever in the vicinity we feel the power, the power of the devil, who is the ruler, the prince of this world, and we can ask him to get away, drive him away, and clear people of his grip, then we can be sure we are citizens of the kingdom of God. और इसी बात को परमेश्वर मसीह हमारे बीच में स्थापना करके बताता है कि जहां पर भी आप हो, आप दुष्टात्माओं को निकालते हुए परमेश्वर के राज्य को आपके बीच में है करके आप स्थापित कर सकते हो। Jesus said, I do it by my finger. The finger. परमेश्वर मसीह कहता है कि मैं मेरे सामर्थ से उंगली से उस दुष्टात्माओं को निकालता हूं। And when you say the finger of God, if you study the scriptures, we know it has been mentioned a few times in the Old Testament and also now in the New Testament. और मसीह के उस उंगली के उस विषय पर जब हम सीखते हैं या परमेश्वर के उस सामर्थ के बारे में सीखते हैं, तो पुराने नियमों में और नए नियमों में भी हम उस बात को देख सकते हैं। The first time we hear about the finger of God is in the book of Exodus chapter 8, where Moses was confronting मसीह के परमेश्वर के उस हाथ को हम निर्गमन 8वें अध्याय में देखते हैं जब मूसा उस फरो के सामने खड़ा है। The first 3 plagues that Moses brought could also be done by the magicians of that day. और जो मूसा ने परमेश्वर के द्वारा उस 3 विपत्तियों को, जो पहला 3 विपत्तियों को उनके ऊपर ले आया था, उस 3 विपत्ति वहां उस मिस्र राज्य के जो लोग थे वे भी वहां के जो जादू टोना करने वाले लोग भी कर सकते थे।
They could also turn their sticks into serpents. They could also turn Nile into blood. They could also bring frogs into the country, और वे भी like वहां what Moses did. और वे भी देखिए जिस प्रकार मूसा ने किया वैसे वो लाठी को सांप बना दिया और नाइल के नदी के पानी को उन्होंने भी लाल कर दिया और वहां मेंढकों को भी उन्होंने भी नाइल के नदी में मेंढकों से भरा दिया। Till then, it was a fight between two powers. तब तक देखिए दो सामर्थ्यों के बीच में वहां एक लड़ाई हो रही थी। But when when Aaron hit his rod and the dust turned into lice and covered the whole palace of Pharaoh, his beasts and every human being, then the magicians could not do that. And not only they could not do that, they came and told Pharaoh, look here, this is not a competition between two magicians, somebody big, somebody small, as the present day magicians also do, but this is the finger of God. This is a different kingdom. This comes from a different authority. We are no match to that. We have to retreat. And after that, they disappeared from the scene. और जब उसके बाद आरोन आकर अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार जिससे वहां मिस्र देश घर कुटकियां बन जाए, उस प्रकार की जब विपत्ति वहां आई तब वहां के उस जादू टोना करने वाले राजा फरू के पास आकर कहा कि देखिए ये दो सामर्थ्यों के बीच में लड़ाई नहीं है, यहाँ परमेश्वर जीवित जो परमेश्वर है उनके साथ उनके विरुद्ध हमारी लड़ाई हो रही है। And that means the finger of God means it is the greatest power that can overcome any evil power in this world. और हम जानते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य वो सबसे बड़ा सामर्थ्य है जो इस संसार के कोई भी सामर्थ्य के ऊपर या शक्ति के ऊपर प्रभाव डालती है। We may say Jesus was God. He had the finger of God. He could do that. But what about us? हम हो सकते हैं इस प्रकार कहें यीशु मसीह तो परमेश्वर का सामर्थ्य वाला है, तो वो इस प्रकार की बातें कर सकता है, मगर हम हमारे विषय में क्या? If we show our finger to a Satan, he won't go. अगर हम हमारे उंगली को शैतान को दिखाएगा तो शैतान भागेगा नहीं। That is why it is explained in Matthew's Gospel when Jesus said it's the finger of God, the same phrase is replaced by the Holy Spirit of God. और उसी बात को हम मत्ती रचित सुसमाचार में देखते हैं कि जहां उस बात को यीशु मसीह के सामर्थ्य या उनके उंगली के बारे में लिखा है, उसी बात को यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ के द्वारा मैंने उस दुष्ट आत्मा को भगाया है। So when Jesus came to establish his kingdom, जब यीशु मसीह आकर अपना राज्य के स्थापना करता है, he gave us the power to become the citizens of the kingdom of God. We are born again, we become citizens of the kingdom of God. और उन्होंने हमको इस अधिकार दिया कि हम उस राज्य के नागरिक बने, और जब हम मन फिराते हैं तब उस राज्य के हम नागरिक बन जाते हैं। But John the Baptist, when he introduced Jesus, he said he is also the baptizer with the Holy Spirit. मगर यूहन्ना जब मसीह को जब वहाँ वो बताते हैं, मसीह के बारे में बताते हैं, तब वो कहता है कि वो बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह है। We must never forget that Jesus came not only to forgive our sins and to redeem us, but he is also the baptizer in the Holy Spirit. He will give the Holy Spirit to us. हम इस बात को भी ये भी समझना चाहिए कि यीशु मसीह आया तो हम केवल उसके राज्य के नागरिक नहीं बने, मगर वो जब आया तो वो बपतिस्मा देने के लिए केवल नहीं है, मगर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देने के लिए और भरपूरी देने के लिए आया है। So Jesus preached about the kingdom. यीशु मसीह ने उस परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया। He told about what I should say, the constitution of the kingdom of God in Matthew 5, 6, 7. और मत्ती रचित सुसमाचार 5, 6 और 7 में उस परमेश्वर के राज्य के उस नियमों के बारे में उन्होंने बताया। But then all these theories he put into practice and said, I have told you about the kingdom of God, I preached you about the kingdom of God, I told you the constitution of the kingdom of God, but now you understand the practical implication is when I show the finger, the demons will go away, the older kingdom will pass away, and you are ushering in a new kingdom. और मसीह उनसे उस परमेश्वर के राज्य के बारे में, उसके नियमों के बारे में, उसके संविधान के बारे में सारे बातें उनको सिखाने के बाद
तो प्रैक्टिकल बात जब प्रायोगिक वजह की विषय में उन बातों को समझाता है कि जब आप आपके अधिकार को उपयोग करके आप अपने उंगली को सामर्थ्य के द्वारा उस दुष्टात्मा को भगाता है, तब वो परमेश्वर का राज्य आपके बीच में है करके पहचानोगे। Jesus told, by the Spirit of God, I drive the demons. यीशु ने कहा कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैं इस दुष्टात्मा को भगाता हूँ। And he says, I give the Spirit of God to everyone who asks. और वो ये बात को कहता है कि मैं उस परमेश्वर की आत्मा को जो लोग मांगते हैं उनके ऊपर बरसाऊंगा। That may be our next question. और अगला हमारा सवाल वो होगा, Can I have this God, the Holy Spirit of God in me? और क्या इस परमेश्वर को मेरे अंदर मैं अपना सकता हूँ? Jesus removed the doubt by saying, if human beings who are evil in their minds can give good things to their children, how much more the Heavenly Father will give the Holy Spirit to those that ask Him. यीशु मसीह ने उस शंका को भी हमारे मन से हटाकर इस वचन के द्वारा उन्होंने कहा कि इस संसार में अगर पिता अपने बच्चों को, पुत्रों को अगर अच्छी बातों को देना चाहता है, तो कितना ज्यादा पिता परमेश्वर तो उनसे मांगेगा उनके ऊपर आत्मा देने। So not only He makes us the citizens of the kingdom of God, वो केवल हमें उस परमेश्वर के राज्य का नागरिक ही नहीं बनाता है, but He also gives us the Holy Spirit to do the same thing that Jesus wanted to do and prove to the whole world we are citizens of the kingdom of God. वो हमसे ये चाहता है और उम्मीद रखता है कि हम भी परमेश्वर मसीह ने जिस प्रकार संसार में परमेश्वर के राज्य को दिखाया और स्थापना किया, उसी प्रकार हम भी उन कार्य को करके परमेश्वर राज्य के बारे में दिखाए। So when Jesus sent his disciples to preach the kingdom, He said, cast out the demons also. और जब मसीह ने अपने चेलों को प्रचार करने के लिए भेजा, तब उनसे कहा उस दुष्टात्माओं को भी आप भगाओ। Then only people will believe this kingdom of God is real. तभी लोग आप पर भरोसा करेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर के राज्य सही है। So in the same Luke's Gospel 11th chapter, Jesus says, you ask and you will receive the Holy Spirit. और उसी लूका रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में मसीह कहता है कि आप मांगो और आप पर उस आत्मा की पूरी आएगी। You cannot just go around and saying, I am a citizen of the kingdom of God, I am a born again man. आप इस प्रकार ऐसे ही ऐलान करके घूम नहीं सकते हो कि मैं परमेश्वर के उस राज्य का सदस्य हूँ और मैं मन फिर आया व्यक्ति हूँ। The world wants proof, and the proof is to show that you can drive out demons. संसार ये चाहता है, सबूत चाहता है, और सबूत यह है कि आप दुष्टात्माओं के ऊपर अधिकार पाए हुए होना चाहिए। No believer should ever claim that he has the Holy Spirit unless he is able to challenge the demonic powers. कोई भी व्यक्ति इस प्रकार नहीं मानना चाहिए कि मेरे पास पवित्र आत्मा के उस दुष्टात्मा के ऊपर अधिकार पाए हुए उसे भगाता नहीं है। What is the evidence that you have the Holy Spirit in you? और ये आपके अंदर पवित्र आत्मा है करके उसका सबूत क्या है? Talking in unknown tongues? क्या अन्य भाषाओं में बात करते हो? You can do that without the Holy Spirit also. पवित्र आत्मा के बगैर भी इस प्रकार की बातें हम कर सकते हैं। Clapping hands? क्या ताली बजाना है? You can do it without the Holy Spirit also. और पवित्र आत्मा के रहित भी आप इन बातों को कर सकते हैं। But you cannot ask a demon to go away unless you have the Holy Spirit in you. Otherwise, the demon will attack you. If you have the Holy Spirit in you, he will obey what you say. Not what you say, but the Holy Spirit in you says. अगर आप कभी भी एक दुष्ट आत्माओं को, जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है, आप उसे भगा नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर आप पवित्र आत्मा के सहायता के बगैर अगर दुष्ट आत्मा को भगाते हो, तो वो आपके पीछे आपको आपके विपरीत खड़ा रहकर आपको जवाब देगा। That is what God is expecting us to do by getting filled with the Holy Spirit. You challenge the evil powers. Paul says our fight is not against flesh and blood, but against the principalities, the powers, the rulers of the darkness in the world, and the spiritual wickedness in the high places. और इसीलिए परमेश्वर इस बात को
हमारे द्वारा चाहता है कि हम इस संसार में रहकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार पाते हुए हम उसे डांट कर लोगों को उसके अंदर से छुटकारा दे। इस प्रकार पौलुस कहता है कि हमारी जो लड़ाई है इस संसार की बातों से नहीं या शक्ति से नहीं, मगर हमारे विरुद्ध काम करने वाले इस दुष्ट आत्माओं के और स्वर्ग के उस इस अंधेरे की अंधकार की उस सामर्थ्य है। Now let me come to my last point. मैं हमारे उस विषय के अंत की ओर आता चाहता हूँ। You may say you are born again. आप कहते होंगे कि आपने मन फिराया है। You may say you have the Holy Spirit in you. आप कहेंगे कि परमेश्वर के उस आत्मा आपके अंदर है। But why, if the whole Pentecostal churches claim that they have the Holy Spirit, why the power is not manifest? Why the evil spirits are not being thrown away? Why the diseases are not cured? What is wrong? Is it the Holy Spirit that is in us? The finger of God that is in us is different from what was operating in Jesus? You may ask the question. अगर कलीसिया के ऊपर सब कुछ है तो फिर क्यों परमेश्वर के उस सामर्थ्य के द्वारा उस आत्माएं क्यों भाग नहीं रही है, क्यों लोग चंगाए नहीं हो रहे हैं? इस प्रकार की सवाल हमारे अंदर आना चाहिए, क्योंकि हम इस प्रकार पूछ सकते हैं कि क्या उसका कारण यह है कि मसीह के अंदर जो आत्मा थी, उस समय की जो सामर्थ्य थी, वो आज मंडरा नहीं रही है। But here is where the finger of God gives us a clear explanation. मगर यहाँ परमेश्वर की सामर्थ्य जो हमें दूसरी एक विषय के ऊपर या उसका उत्तर हमें देता है। I told you the finger of God is equated with the Holy Spirit. परमेश्वर की उस सामर्थ्य जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाती है। The Holy Spirit comes into us not only to do great, powerful ministry to drive out demons, but the main work of the Holy Spirit inside us is to create holiness within us. और पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर दिया गया हुआ है वो केवल दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार नहीं देता है, मगर उस ये है कि हमारे अंदर पवित्र जिंदगी बिताने का एक प्रेरणा हमें दे। In the olden days, the commandments were given to Moses to be passed on to the people, written by the finger of God on the stone tablets. पुराने नियमों में, पुराने करार के समय में हम देखते हैं कि परमेश्वर के उस आज्ञाओं को पत्थर पे लिखकर मूसा के समय में लोगों को दिया जाता था कि ताकि on that stone the finger of God wrote these 10 commandments. और उस पत्थर पर परमेश्वर के उंगली से उन्होंने उस 10 कल्पनाओं को लिखा था। In Jeremiah 33:31, और यिर्मयाह 33:31 में God says, now I am not going to write it in stone tablets and give to you. I am going to write it in your heart with my fingers. और उसमें परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि मैं अभी उस पत्थर पे लिख के नहीं दूंगा, मगर मैं ये आपके हृदयों में लिख के दूंगा। And that means the Holy Spirit's main work inside us, before we can tell the outside world that I am a citizen of the kingdom of God, the Holy Spirit's main work is to write in your heart the holy commandments of God so that it never can be erased, it never can be thrown away, it can never be broken, it becomes part and parcel of your life. और इसलिए पवित्र आत्मा का जिम्मेदारी ये है कि परमेश्वर के वचन हमारे हृदय के अंदर वो लिख के हमें पवित्र जिंदगी बिताने के लिए हमें आगे ले चले, ताकि हमारे उस हृदय के पटकों में से ये कभी भी बाहर फेंका नहीं जाए या कभी निकाला नहीं जाए। The finger of God means two things. परमेश्वर की उस उंगली अर्थात दो बात को दर्शाता है। No, it means the Holy Spirit, but with a two or a dual role within us. और अर्थ परमेश्वर का उंगली पवित्र आत्मा को दिखाता है और हमारे अंदर दो जिम्मेदारी के साथ उसे उंडेला है। Jesus was holy. The Holy Spirit need not make him holy anymore. यीशु मसीह पवित्र है और पवित्र आत्मा उसे पवित्र करने की जरूरत नहीं है। But the power was manifested. मगर सामर्थ्य वहां दिखाया गया था। But for us, we need holiness first. मगर हमें पवित्र होना जरूरी है। That is what the Holy Spirit has to do in our lives. He is Holy Spirit.
और इसीलिए पवित्र आत्मा का जिम्मेदारी है कि वो पवित्र होने के कारण हमें वो पवित्र बनाए। And once he starts the work of making us holy, और जब उसका हमें पवित्र बनाने का क्रिया वो शुरू करता है, cutting away things that are not, conducive to live a holy life, और उन सारी बातों को हमारे जिंदगी से हटा देते हैं जो हमारे जिंदगी में पवित्र जिंदगी बिताने के लिए रुकावट बन जाती है, shaping you into the nature of Jesus day by day. और हर दिन हमें परमेश्वर मसीह के उस स्वभाव से अनुरूप बनाता है। Then as you grow into the stature of Jesus, as you become holier and holier, you will see the fruit of the Spirit coming, and that is what, going as power, and that is what can drive away demons, cure diseases, and prove to the world you are a man with the Holy Spirit. We are a man in the kingdom of God with the power of the Holy Spirit operating in you. और उसी प्रकार जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रिया करता है, हर दिन हम और पवित्र बन के परमेश्वर बनता है, तब उस आत्माओं के ऊपर अधिकार और बीमार लोगों को चंगा करने की सामर्थ्य सब हमारे अंदर बनता है, और परमेश्वर के राज्य को हमारे द्वारा इस संसार में अन्य लोग देख सकते हैं। Now in this time of crisis, इस तकलीफ और मुसीबत के समय के बीच में it's not only enough that we cry for other people and show concern for other people. That is necessary, that's important. इतना केवल काफी नहीं है कि हम अन्य लोगों के दुख में भाग होकर उनके लिए रोएं। That's any good citizen of the kingdom of this country can do. Citizen of this country can do. हर अच्छे नागरिक इस राष्ट्र के अच्छे नागरिक इस बात को तो कर सकते हैं। But there is something that only a citizen of the kingdom of God can do. मगर एक बात है जो उस परमेश्वर के राज्य के नागरिक ही कर सकता है। Drive out the demonic force. इस अंधकार की सामर्थ्य को भगाने की उस क्षमता। It does not mean you tell corona stop and it stops. इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोरोना के ऊपर डांटो और वो रुक जाए। You can say, get away from my place. But आप कह it is you cannot enter here. Show your finger, show your power, show the spirit of holiness, show the spirit that the spirit resides in you. उस पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करती है करके आप दिखा सकते हो। आपके अंदर जो सामर्थ्य है उसको आप उपयोग कर सकते हो। आप उंगली दिखाकर आप बता सकते हो कि मेरे इलाके में आप आओ नहीं। When Jesus drove out one demon from somebody, जब मसीह ने एक दुष्ट आत्मा को एक व्यक्ति से भगाया, it does not mean the demons stopped their activity immediately after that. All the demons. इसका मतलब ये नहीं था कि दुष्ट आत्माएं सारे दुष्ट आत्माएं अपने अपने कामों को रोक दिया। There were other demons also. और भी दुष्ट आत्माएं अन्य जगहों में काम कर रहे थे। When he sent out his disciples to preach the kingdom of God, जब मसीह के चेलों को मसीह ने परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करने के लिए भेजा, he says, go village after village, drive away the demons. और वे उनसे कहा कि जाओ हर गांव में जाओ और वहां के अंधकार की सामर्थ्यों को भगाओ। Wherever you live, जहां भी आप रहते हो, you have a finger of God. आपके पास उस परमेश्वर का सामर्थ्य है, उनका उंगली है, The Holy Spirit. परमेश्वर की पवित्र आत्मा। And that Holy Spirit, if it has to really operate in you, अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर सही रूप से काम करना है, be assured of one thing. आप एक बात पे निश्चय होना है, even though he is willing to pour his Holy Spirit into you, परमेश्वर आपके अंदर उसके आत्मा को उंडेलना चाहने पर भी, he will not fill a vessel that does not belong to him. वो उस बर्तन को कभी भी नहीं भरेगा जो उनका नहीं है। When you talk about a kingdom, जब एक राज्य के बारे में आप बात करते हैं, there is no kingdom without a king. एक राज्य राजा के बगैर नहीं है। So when you say you are a citizen of the kingdom of God, और जब आप कहते हैं कि मैं उस परमेश्वर के राज्य के नागरिक हूँ, you are under the kingship of Jesus. हम मसीह के उस राज्यत्व के अंदर है। He is the king. वो राजा है। Which means you cannot challenge him, you cannot disobey him, you cannot advise him, you cannot change him, you cannot do anything but obey.
इसका मतलब यह है कि उसके शासन के अंदर जब हम रहते हैं, हम उसको कभी सवाल नहीं कर सकते हैं, हम उसको पूछ नहीं सकते हैं, हम उसके कहना माने बगैर नहीं रह सकते हैं। हमारे पास एक ही बात है, एक ही उपाय है, हमें खाली उसका कहना मानना है। When you are in a democratic country, हम जब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, you can challenge your prime minister, president. हम हमारे उस प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को चुनौती दे सकते हैं, You can give advice to him, हम उन्हें सलाह दे सकते हैं, but it's not in the kingdom. King मगर means he has to be obeyed. मगर राज्य में जिसका राजा है उसके नीचे हम इस बात को नहीं कर सकते हैं। Yeah, हमें full उनकी surrender, बातों को full मानना है, surrender, पूरे तौर से समर्पण करना है, full yielding to the Holy Spirit, पूरे तरफ से पवित्र आत्मा को हमें allowing him to carve in us the image of Jesus. और पवित्र आत्मा को हम अनुमति दे कि वो हमारे अंदर मसीह के उस रूप को बना दे Aspire to live a holy life, और एक पवित्र जिंदगी बिताने के लिए हम अपने आप को सौंपे, which we can never do, but we can always do with the Holy Spirit. हम अपने बल से कभी नहीं कर सकता है, मगर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ही हम एक पवित्र जिंदगी बिता सकते हैं। When the finger of God writes the holiness, commandments of holiness in your heart, जब परमेश्वर की उंगली हमारे हृदय के अंदर पवित्र जिंदगी बिताने की बातों को लिखता है, the finger of God will be in you to exorcise the devils, cure the diseases, and drive away the demonic forces that is in your vicinity. उसी परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे साथ रहेगा कि हम उस दुष्ट आत्माओं को पर अधिकार पाते हुए उसे भगाए, बीमारियों को चंगा करे और लोगों को दिलासा पहुंचाए। Every believer should have this in his life. He must have holiness, he must have power. Holiness plus power, that is what is expected of the citizen of the kingdom of God. हर एक विश्वासी के अंदर ये दो बात होना चाहिए, वो पवित्र होना चाहिए और जब वो पवित्र होता है तो उसके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए। यही एक परमेश्वर के राज्य के नागरिक होते हुए हमारे अंदर से परमेश्वर उम्मीद करता है। There is evil in this world. ये संसार पूरा दुष्टता से भरी है। There is evil near us. हमारे नजदीक में भी दुष्टता से भरी है। But if you have the finger of God in you, अगर जब परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे साथ होता है, if you have the Holy Spirit, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, if you have allowed the Holy Spirit to work changes in your life and make you whole, पवित्र आत्मा को अनुमति देता है कि आपके जिंदगी में वो बदला दे, you can prove to the world that you have the power to cast away demons and cure the sicknesses. आप संसार में स्थापित कर सकते हैं कि आपके अंदर वो सामर्थ्य है कि आप दुष्ट आत्मा को भगा सकता है और बीमारियों को चंगा करने की सामर्थ्य आपके अंदर है। Go and read Luke's Gospel 11th chapter 1 to 22 verses again and again at home. लूक रचित सुसमाचार 11वें अध्याय 1 से लेके 22 तक आप घर जाकर वापस पढ़िएगा। I could not fully explain that, मैं पूरी तरह से उस बात को समझा नहीं पाया, but I thought I brought the real point in that. बट मैं समझता हूँ कि उसका मूल संदेश मैं आपके बीच में रख पाया हूँ। By the finger of God, by the Holy Spirit, we can drive out demons. We can prove that we are citizens of the kingdom of God by casting away the devils and curing the sicknesses. और पवित्र परमेश्वर के उस सामर्थ्य के द्वारा हम बता सकते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं और उस उंगली के सामर्थ्य के द्वारा हम दुष्ट आत्मा को भगाकर हम दिखा सकते हैं कि हम उस राज्य के नागरिक हैं। Shall we take up this challenge? क्या हम इस चुनौती को ले सकते हैं? We are the salt of the earth. हम इस संसार के नमक है। We have the potency to prevent decay. और सड़ावट से बचने के लिए हम रुकावट डालने के लिए परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है। We have the finger of God. और हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य है। Prove to the world that we are citizens of the kingdom of God. The kingdom of God is already established here by casting out demons and healing sicknesses. और हम संसार को इस बात से स्थापित कर सकता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हम उस दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार रखा कर उसे भगाकर और बीमारियों के ऊपर चंगाई करते हुए हम परमेश्वर के उस राज्य के नागरिक हैं। Ideal time to practice this. एकदम सही समय इन बातों को
प्रायोगिक रूप में करने के लिए। Never be satisfied with only crying and weeping. Go against the devil, and if there is something that you cannot do, find out why and ask God to bring holiness in your heart and express that holiness in the form of the finger of God, driving out the evil forces. और हम केवल रोने से और प्रार्थना करने में अपने आप को सीमित नहीं रखें, मगर बाहर की ओर जाकर हम इस परमेश्वर की सामर्थ को अन्य दुष्ट आत्माओं को भगाकर और रोगियों के लिए प्रार्थना करके उनको चंगाई दिलाते हुए उस सेवकाइयों को कर राज्य के नागरिक होकर दिखाने पाए। May God bless you with these words. परमेश्वर आपको सहायता करे। Thank you, Pastor Suresh, and thank you, brother, who translated. Thank you so much. You helped me. God bless you.